Okay, so our today's topic is digital filters, and today we will be covering two types of digital filters, namely finite impulse response filters and infinite impulse response filters. Okay, and first of all, you need to know what is the difference between analog filter and a digital filter. Analog filter will always have its transfer function in S domain, okay, and its impulse response in small h of t, which is continuous, okay. And the digital filter will always have its transfer function in Z domain, capital H of Z, okay, and corresponding impulse response in small h of n, okay, which is also discrete, okay. And the one major advantage of digital filters is that you can implement them. And in addition to that, the digital filter offer us the following advantages. They are programmable. So it means that you can, once you have designed a filter, you can change its parameters as well. Okay, you can use one filter by changing its parameter for a different application as well. While this freedom was not there when in case of analog filters. Once a filter is designed, it stays with that configuration for the rest of its life. Okay. Second one is, and digital filters are more reliable and repeatable. They are free from component drift. No tuning is required. No component matching is required, and they offer you superior performance in comparison to their analog counterparts. Uh, there are two type of digital filters. The first one is finite impulse response filter, and the second one is infinite impulse response filter. Okay, and their name exhibits their properties. In case of finite impulse response filter, the impulse response of a filter will have a finite length. Okay, it will have some range given for it, and it will be integrable, and it will be inherently stable. Okay, because we know that in order for any filter to be stable, condition is that it needs to be integrable, and in order to be integrable, there has to be a range of integration. Okay, in case of infinite impulse response filter, the impulse response of filter will be infinite. Okay, it will have no range, or at least it will not be able to be integrable. Okay, if you have any question, you can interrupt me anytime. Any question till now? No, sir. Okay, then I will start with IIR filters because relating IIR filters to analog filter is a bit easier. First, we will do IIR filter, and then we will jump to FIR filter, and then today's lecture will be over. Okay. So, in case of IIR filter, the transfer function h of z will be a rational function in Z domain. When I say a rational function, it means that there will be something in numerator, which I'm showing you over here, is equal to summation n is equal to 0 till capital M B of n z inverse. Okay, and B of n will keep on changing depending upon b0, b1, b2, b3. Okay, and also the corresponding delay elements as well. And you will have something else in your denominator as well. Okay, which I'm showing you over here is as summation n is equal to 0 till capital N small a of n z inverse, and a of n yet again keeps on changing, a0, a1, a2, a3, and so on. Okay, this is a rational function in Z domain. You have something in numerator and you have something in denominator as well. In order afterwards, whatever is in the numerator, we describe it as b of z, capital B of z, and denominator as capital A of z. Okay, in order to design IAR filter, what we do is, in order to convert analog filter to digital filter, a technique of bilinear transformation is used, which is described as uh, s is equal to 2 over capital Ts into z minus 1 over z plus 1. Okay, up till now we have seen that we can design our analog filters in S domain, and our result will be a transfer function in S having something in numerator and something in denominator, not necessarily, but one of them will be there at least. Okay, so what we do is, in our transfer function of h of s, wherever we have a small s, we replace that with 2 by s or into z minus 1 over z plus 1. Okay, now what is this capital Ts? Capital Ts is the implied signal sampling interval associated with conversion from S domain to Z domain. We know that S domain is a continuous domain and Z domain is a discrete domain. Okay, so in discrete domain you have samples of your signal arranged after a regular interval, and that regular interval can be small, can be big, but there must be some regular interval we call a sampling rate. Okay, or a sampling frequency, and this inverse of sampling frequency is capital Ts. Okay, so it will be a scalar number which will describe your sampling rate in your Z domain. Okay, so what you need to do is, whatever your transfer function is in analog domain,
you convert it into h of z, and then you can either make your h of z to h of n by taking its inverse z transform, and you can also implement whatever h of z you have come up with till now. Okay, if anyone has a question till now, let me know, then I will move to the next slide. कोई question अभी तक? सर ये टीएस को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके, बेसिकली आपको पता है कि जो एस डोमेन है वो कॉन्टिन्यूस है। ओके, उसमें कॉन्टिन्यूस सिग्नल है स्मॉल टी के साथ। ओके, आपने जब भी किसी कॉन्टिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपने कोई ना कोई सैम्पलिंग रेट बनाना होता है। आप कोई ना कोई सैम्पलिंग रेट चूज करके अपने कॉन्टिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। वो सैम्पलिंग रेट इफेक्टिवली आपको ये बता रहा होता है कि आपने 1 सेकंड में कितने सैंपल लेने हैं। ओके, आपका सैम्पलिंग रेट जितना ज्यादा होगा, आप 1 सेकंड में उतने ही ज्यादा सैंपल्स लेंगे। ओके, उतनी ही ज्यादा क्लोजर अप्रोक्सीमेशन होगी आपके डिस्क्रीट सिग्नल की आपके कॉन्टिन्यूस सिग्नल के साथ। ओके, सो ये जो कैपिटल टीएस है, ये बेसिकली आपका इनवर्स ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का इनवर्स लेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, या टाइम डिफरेंस आ जाएगा दो कंसेक्टिव सैंपल्स के बीच में। ओके, और जितना वो टाइम डिफरेंस कम होगा, उतने ही सैंपल्स कॉन्टिन्यूस सिग्नल को ज्यादा बेहतर अप्रोक्सीमेट करेंगे। ठीक है, तो जो आपका कैपिटल टीएस है, ये बेसिकली आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है। ओके, यस सर, थैंक यू। okay, and then we move to the next slide. Okay, assuming ts is equal to 2, in this slide, if I take ts is equal to 2, then 2 will get cancelled by 2, and I will left with s is equal to z minus 1 over z plus 1. Okay, but you need to keep in mind that this approximation, that is assume ts is equal to 2, you will only use it when it will be given to you. Okay, if it's not given to you, then you will use the actual formula of bilinear transformation. Okay, let h of a stands for analog. H of a as denote transfer function of an analog continuous filter. Then a corresponding digital IR filter can be given as, in your h a of s, wherever you have s, you replace with s with z minus 1 over z plus 1, and you come up with your transfer function in z domain, which is your digital IIR filter. Okay, yet again you have seen over here is that I have taken capital Ts is equal to 2, yet this approximation will only be taken when it's given. Okay, otherwise you need to use the original formula of bilinear transformation. Then how do you map your s and z domain? Okay, and now in the bottom plot, on the right side you have s plane, and on the left side you have your z plane. Okay, and we know that in our s plane, on x-axis we have sigma, which is a real scalar number, and on y-axis we have j omega, and because of j, this axis becomes imaginary. Okay, and what we need to do is, if you assume your j omega axis as a straight line, then this straight line, which is a vertical line, we make this straight line in a shape of a circle. Okay, and whatever is in the left side of your s plane becomes inside of unit circle in your z domain, and whatever is on your right side of s plane becomes the outside of this unit circle in z domain. Okay, so your whole j omega line has been converted to this unit circle with its perimeter being shown as j omega line. Okay, whatever is in left side of s plane is inside the unit circle, whatever is in on the right side of s plane becomes your exterior to your unit circle. Okay, this is how exactly you will map your s plane to your z plane. Okay, and now we will also solve an example, and then you will see how this mapping can be useful. Okay, and in case of when we were studying Laplace transform, we saw that in order for a right-handed signal to be stable, we need to ensure that its poles are on the left-hand side of your s plane. Anyone remembers that? आपको याद है ये बात? Yes, sir. Okay, so if your poles Yes, sir. need to be the left-hand side of your s plane, then the similar criteria of stability in case of z plane will be that your poles need to be inside your unit circle in order for your transfer function to be stable. Okay, so the stability की जो conditions हैं वो same रहती हैं, सिर्फ मैपिंग चेंज हो जाती है. ओके, इन एस प्लेन में आपके जो पोल्स हैं वो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे फॉर अ राइट हैंडेड सिग्नल, आपका सिग्नल स्टेबल होगा, और जी प्लेन में अगर आपके पोल्स इनसाइड द यूनिट सर्कल होंगे फॉर अ राइट हैंडेड सिग्नल, आप
ये जिशान हैदर का माइक। सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, अब आ रही है। और आगे So this was our mapping between S domain and Z domain. Okay, and I have shown that over here as well. Left half जी जी, प्लेन जी। में इनसाइड वाली बात जो है दोबारा रिपीट कर दें। मैं आपको बताता हूँ, देखें आपके सामने ये जो बॉटम में प्लॉट मैंने बनाया ये शो हो रहा है। हेलो मैडम। जी सर। अच्छा, अब बेसिकली अगर आप राइट साइड पे लें जो आपका एस प्लेन है और ये जो स्ट्रेट लाइन है जियो मेगा वाली लाइन, ठीक है, अगर आप इसको अपना राइट हैंड ज्यूम करें और इस राइट हैंड से आप एक सर्कल बना दें, ठीक है, वो जो स्ट्रेट लाइन है उसको कर्व करके ऊपर नीचे से आप एक सर्कल बना दें यूनिट सर्कल का, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यही होता है आपके पास जी डोमेन में, रेस्ट डोमेन में। जो आपके पास जियो मेगा वाली लाइन है तो बेसिकली इस यूनिट सर्कल की आउटर पैरामीटर है। ओके, इस यूनिट सर्कल का जो सर्कल है ना बेसिकली 1 रेडियस के साथ, वो सारे का सारा आपका जियो मेगा एक्सिस है, स्टार्टिंग फ्रॉम -इंफिनिटी टिल +इंफिनिटी। ओके, यही करते हैं हम एस डोमेन में और जी डोमेन में। तो अगर आप एस डोमेन में अपने जियो मेगा एक्सिस के साथ ये कर दें तो आपके पास जी डोमेन बन जाएगा। किसी का माइक ऑन हो गया? ओके सर, आ गया सर। Okay, so move to the next slide. सर जी जी क्वेश्चन पूछें। जो एस प्लेन में आपने जे मेगा वाली लाइन बताई, ये आपने बताया कि यूनिट सर्कल का जो जितना ही पेरीमीटर है वो उसका बनेगा, ठीक है ना, पेरीमीटर बनेगा। अगर जे मेगा की लाइन जो है वो मतलब बहुत छोटी हो तो फिर यूनिट सर्कल बहुत छोटा हो जाएगा उससे। नहीं, जियो मेगा की लाइन छोटी कैसे हो सकती है? देखें जियो मेगा की लाइन तो आपका एक्सिस शो कर रहा है, ऐसा ही है, ठीक है, तो एक्सिस कभी भी छोटा नहीं होता, एक्सिस तो मतलब इनफाइनाइट होगा। ओके, तो आपने इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन को अपने इस यूनिट सर्कल के रेडियस पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस को। जी जी, मतलब फिर जो इसका सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो भी इनफाइनाइट के मतलब करीब होगा बिल्कुल? नहीं, बेसिकली एस डोमेन में आप देखें ये जो वाई एक्सिस है जो जियो मेगा है, ठीक है, इसके ऊपर भी एरो लगा हुआ है इन्फिनिटी तक और ये नीचे भी एरो लगा हुआ है, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, अच्छा, अब इस इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन को हमने ट्रांसलेट कर दिया है समवट एक फाइनाइट पे, ठीक है, तो मतलब ये जो जियो मेगा वाली लाइन है इस यूनिट सर्कल का ये वो पैरामीटर बन गया है, ठीक है। अब इस जियो मेगा जो इनफाइनाइट एक्सिस होता है वो पूरे का पूरा एक्सिस कवर्ड नहीं होता आपके पास, ऐसा ही है, ठीक है, आप उस एक्सिस पे कुछ लिमिट तक जाके कुछ चीज शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो लिमिट आप इस यूनिट सर्कल के पैरामीटर पे शो करेंगे। देखें एक्सिस भी आप कभी पूरे का पूरा यूज नहीं करते, कभी ऐसा होता है कि आपने पूरे का पूरा वाई एक्सिस यूज किया या पूरे का पूरा एक्स एक्सिस किया यूज, ठीक है, वो सिर्फ आपको गाइड कर रहे होते हैं कि ये वाला एक्सिस है जो और इसके 90 पे ये वाला एक्सिस पड़ा हुआ है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर हमेशा आपके पास फाइनाइट ही होती है यूजुअली, ठीक है। तो वो जो फाइनाइट इन्फॉर्मेशन है, अब रादर देन कि आप उसे जियो मेगा पे स्ट्रेट लाइन पे देखें, आप उसे यूनिट सर्कल के इस सर्कल के ऊपर देखेंगे। और अगर आपने देखा भी हो लास्ट टाइम, बेसिकली जियो मेगा एक्सिस जो है इसके ऊपर जो चीज चेंज हो रही है वो ओमेगा है, जो आपका एंगल है। ओके, जे सिर्फ उसको इमेजिनरी बना रहा है। और हमने लास्ट टाइम देखा भी था कि जब हम फिल्टर डिजाइन कर रहे थे तो हम अपने पोल्स को यूनिट सर्कल के ऊपर किसी जगह पर रख रहे थे तो हम 0 से पाई तक जा रहे थे। ओके, ठीक है, इसका मतलब है कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो एंगल की आपको इस वाई एक्सिस पे मिल रही है अपने जियो मेगा एक्सिस पे, अब वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको 0 से पाई के बीच में मिलेगी, या अगर आप नीचे से देखना है तो 0 से -पाई के बीच में मिलेगी। ओके, ठीक है, तो कोई चीज 0 से कम नहीं हो सकता एंगल, और कोई भी एंगल जो है वो 2 पाई से बढ़ नहीं सकता, ठीक है, तो ये 0 से 2 पाई के बीच में रहेगी, और वही जो सारी इन्फॉर्मेशन इन्फिनिट है वो 0 से 2 पाई के बीच में कवर कर रहे हैं वहां। ओके, अगर और कोई क्वेश्चन है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, वही पॉइंट्स जो भी मैंने बताए थे मैं उन्हें दोबारा रिट्रेट कर देते हैं एक दफा। लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन इज मैप्ड ऑनटू द इंटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल इन जी प्लेन। एंटायर जियोमेट्रिक axis of S plane is mapped onto one complete revolution of unit circle in Z plane. Right half of S plane is mapped onto the exterior of unit circle in the Z plane. If H of A of S is stable and causal, then the digital filter derived from it using bilinear transformation is guaranteed to be stable and causal too. So this is an important point you need to keep in mind, okay, that your digital IAR filter is only stable as long as HA of S is stable. Okay, if your HA of S is not stable, then your digital IAR filter will not be stable as well. Okay, this condition is not applicable to FIR filters. FIR filter by virtue of their definition are always stable. Okay,
So in order to make your IIR filter stable, you need to ensure that your HFA of S is stable, okay? And in order to make your HFA of S stable, you need to ensure that all your poles are in a left-hand plane of your left-hand side of your S plane, okay? And now we do an example. This will be showing you how to convert your analog filter to digital IIR filter, and afterwards also how to implement it, okay? And I choose that because it's a bit easier, and then we'll move to FIR filter, okay? अभी तक किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? No, sir. Okay, then we have an example using an analog filter with a Butterworth response of order is equal to 3. Design a digital IIR low pass filter with omega C is equal to 0.2 pi. Okay, now just like before, we first design a Butterworth low pass analog filter, and in this case the order is given to us as 3. Can someone tell me what will be the H of S for order 3, the Butterworth low pass filter, the transfer function H of S? किसी को याद है? S cube plus 2s square plus 2s plus 1. मैडम पूरा बताएं जरा। H of S is equal to S cube plus 2s square ये plus 2s. डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमरेटर में होगा? डिनोमिनेटर में होगा सर। तो फिर 1 ओवर हुआ ना? 1 ओवर यस सर। जी 1 ओवर आगे क्या लिखूं नीचे? S cube S plus cube 2 plus 2s square plus 2s square plus 2s plus 2s plus 1. plus 1. ओके, ये तो था जनरल एच ऑफ एस, ओके? व्हाट इफ हमें एक ओमेगा सी दिया हो, उस केस में एच ऑफ एस क्या होगा? ये मालूम है किसी को? हेलो बच्चों, जी सर दोबारा क्वेश्चन जी ये मैडम ने अभी हमें ट्रांसफर फंक्शन बताया एच ऑफ एस फॉर अ जनरल एस जिसमें ओमेगा सी नहीं गिवन था, ठीक है? अज्यूम हमें ओमेगा सी दिया हुआ है, जैसे इस केस में हमें ओमेगा सी दिया हुआ है, फिर हम क्या करेंगे? सर बेसिक फार्मूले में जाके उसको किसी फर्ज में S1 से रिप्लेस कर देंगे, एंड फिर जो आंसर आएगा S1 को दोबारा उससे ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे। हाँ, मतलब जहाँ भी एस है, एस को एस ओवर ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर देंगे जैसे वो पहले करते थे। ओमेगा और एस पुट करते थे ना, एस इज इक्वल टू ओमेगा। ओके गुड, ठीक है। तो आपको मतलब थर्ड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन मालूम है, ठीक है? और अगर आपको ये भी मालूम है कि अगर कोई ओमेगा सी दिया हो तो ट्रांसफर फंक्शन में क्या चेंज करना है, ओके? तो हम वापस आते हैं अपने इस एग्जांपल की तरफ। मेरी एग्जांपल, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले इस केस में आपको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना ओमेगा सी, जो डिजिटल फ्रीक्वेंसी है 0.2 पाई, ठीक है? हमने उसको एनालॉग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? डब्ल्यू ओमेगा सी के साथ, ठीक है? हमेशा ये केस आप करेंगे जब भी आप एनालॉग फिल्टर से डिजिटल फिल्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके? तो इसके लिए जो फार्मूला है वो आपने अपने ध्यान में रखना है कि जो डब्ल्यू वाला ओमेगा सी है इज इक्वल टू tan डिजिटल ओमेगा सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? हमेशा, ओके? अच्छा, ये काम करने के बाद हमारे पास जो डब्ल्यू वाला ओमेगा सी है वो आ जाएगा 0.3249। आप अपने कैलकुलेटर इसमें से कर भी सकते हैं, tan ऑफ 0.2 पाई डिवाइडेड बाय 2 लेंगे तो 0.3249 आ जाएगा, ओके? उसके बाद बिल्कुल जो भी मैडम ने मुझे एच ऑफ एस की ट्रांसफर फंक्शन बताया था वो यहाँ लिखा हुआ है, एफ फॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 3, एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस प्लस 1 इनटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ठीक है? एंड इन दिस केस सिंस वी आर गिवन विद डब्ल्यू सी जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो हमने एस को एस ओवर ओमेगा सी से रिप्लेस कर देना अपनी इस एक्सप्रेशन में, ठीक है? मैंने वही काम किया है, डिनोमिनेटर में जहां जहां मेरे पास एस है मैंने वहां एस ओवर ओमेगा सी लिख दिया है, ठीक है? और उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया है तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की बन गई है जो कि बिल्कुल लास्ट वन है। एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0.0343 ओवर एस प्लस 0.3249 इंटू एस स्क्वायर प्लस 0.3249 एस प्लस 0.1056। सबके पास यही सोल्यूशन आया? आप प्लीज अपने पास जो पेपर पेन है उस पे से करें, मुझे बताएं ये सोल्यूशन आया आपके क्वेश्चन है? जी जी सर पहले एस को ओमेगा सी और एस से नहीं तो करते रिप्लेस, लास्ट टाइम जो मैंने बताया। आप देखें, आप ओमेगा सी ओवर एस से करते थे कि एस ओवर ओमेगा सी से करते थे? मेरे पास तो एस मेरे ख्याल से तो ओमेगा सी और एस ही था, क्योंकि किसी आपने बताया था ना कि ओमेगा सी जो 1 है तो इसलिए हमने 1 पुट करके तो 1 ओवर एस पुट किया था वहाँ। मुझे यही पिछले लेक्चर में क्लास में किसी और को याद है वो लेक्चर जहाँ हमने ओमेगा सी अगर हो तो फिर हम एच ऑफ एस के साथ क्या करते हैं? क्योंकि मेरे पास लेक्चर खुला हुआ है, हमने
एस ओवर ओमेगा सी पुट किया था, ओमेगा सी ओवर एस पुट नहीं किया था। तो सर हमने ओमेगा सी ओवर एस तब पुट किया था जब हमने लो पास को हाई पास में कन्वर्ट किया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही मैडम आप, ठीक है। जब हमने लो पास से हाई पास किया तब हमने ये काम किया था। अगर हमने सिर्फ एक गिवन आर्बिटरी ओमेगा सी को अंदर इंप्लीमेंट किया था तो हमने एस ओवर ओमेगा सी किया था। ऐसा ही है। और भी कोई अगर गवाही आ जाए क्लास से तो जरा बेहतर हो जाएगा काम। जी सर। कोई और ऐसा ही है जी। जिसने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा था भाईजान, आपका क्लियर हो गया? ये एस ओवर ओमेगा सी। सॉरी जी सर, समझ आ गया। चलें ओके। हमने एस को एस ओवर ओमेगा सी से रिप्लेस कर लिया। हमारे पास एच ऑफ एस की एक फाइनल एक्सप्रेशन बन गई है जो कि इस स्लाइड में सबसे नीचे शो हो रही है। सबको क्लियर है यहाँ तक? आपने अपने पीस ऑफ पेपर पे सॉल्व किया, यही आया सोल्यूशन? किसी के पास कोई और सोल्यूशन है तो मुझे बता दे। यही है सर। किया भी है किसी ने कि नहीं? ये किया है? यस। अच्छा चलें, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। ओके, अब हम सर चलते ये हैं। वैल्यू जो है ओमेगा सी की वो 0.314 आ रही है कैलकुलेटर पे। तो अगर ओमेगा सी 0.2 पाई डिवाइडेड बाय 2 करना है कोई बात वो नहीं मैडम, 0.31 मेरे पास 0.32, आपके पास 0.31 है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। ओके जी सर। यस सर। चलें हम आगे चलते हैं। हमने अच्छा, नाउ वी हैव मेड the analog transfer function of our filter which is given to us. Now we need to convert it into digital domain, and for that we will use a bilinear transformation, and we will keep that in mind that this is the case for ts is equal to 2. Okay, for ts is equal to 2, what we need to do, we need to replace z is equal to 1 over s over 1 minus s, and if you have to use the value of s then you do like आप इस इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, और इस इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल के जो z बना है मैंने उसी को इसके अंदर पुट किया है। ठीक है, I came up with h of z is equal to 0.0181 into z plus 1 into cube over z minus 0.5 multiplied by z square minus 1.25 z plus 0.39. Okay, अच्छा, न्यूमरेटर में मेरे पास z प्लस 1 का होल क्यूब है मैंने उस पर फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान में रखिएगा कि z डोमेन में जो आपकी फिल्टर इंप्लीमेंटेशन होती है वो हमेशा डिले एलिमेंट्स के साथ होती है। ठीक है, और डिले एलिमेंट्स जो है वो हमेशा z की पावर नेगेटिव में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे z इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिले, z इनवर्स टू -2 इज इक्वल टू 2 डिले। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास h ऑफ z की जो एक्सप्रेशन बन रही है उसमें z की पावर पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, जो मेरे पास z की सबसे बड़ी वाली पावर है ना z क्यूब, उससे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये z डिवाइड डिनोमिनेटर एंड होमिनेटर बाय नॉट z इज इक्वल टू -3 डिवीजन है z क्यूब के साथ। ठीक है, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में z क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो पावर्स हैं अब वो रादर देन पॉजिटिव होने के जाए वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, वही मैंने काम किया। जो दरमियान वाली एक्सप्रेशन है h of z बन गया into 0.0181 into 1 minus 3 z inverse plus 3 z raised to power -2 plus z raised to power minus cube divided by 1 minus 1.75 z inverse plus 0.3 z raised to power -2 minus 0.195 z raised to power -3. Okay, सर ये आपने पिछली एक्सप्रेशन में पुट किया सारा कुछ, z इक्वल 1 प्लस s और 1 माइनस एग्जैक्टली बेसिकली मेरे पास s और z का जो रिलेशन है वो है z इज इक्वल टू 1 प्लस s ओवर 1 माइनस s। ठीक है, यहाँ से आप s की जगह z की वैल्यू पुट कर सकते हैं और z की जगह s की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन में से मैंने s की वैल्यू निकाली नहीं है, आप उसे निकाल सकते हैं। एक सेकंड, लेट ट्राई। z इज इक्वल टू 1 प्लस s ओवर 1 माइनस s, z माइनस ds इज इक्वल टू 1। ठीक है, और s को उधर ले जाएं, माइनस s माइनस z डैश इज इक्वल टू 1 माइनस z, s को कॉमन ले लें, -1 माइनस z और s बन गया आपके पास 1 माइनस z ओवर -1 प्लस z, और ये बन गया s इज इक्वल टू z माइनस 1 ओवर z प्लस 1। हाँ ओके, सो अगर आपने ये एक्सप्रेशन यूज करना है जिसमें z इज इक्वल टू 1 प्लस ओवर s ओवर 1 माइनस s है और इसमें से आपने इसकी वैल्यू निकाल दी है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास निकल रही है s इज इक्वल टू z माइनस 1 ओवर z प्लस 1। ठीक है, कोई और बंदा इसको वेरीफाई कर सकता है? यस सर, यही है।
यही है। तो जब आपके पास की वैल्यू आ गई z-1 ओवर z+1, तो अब इस s की वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ये जो यहाँ पे मैंने शो की हुई है आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पे s की वैल्यू ये पुट करने के बाद आप एलसीएम वगैरह लें, और एलसीएम वगैरह लेने के बाद आपके पास h ऑफ z की एक्सप्रेशन आ जाएगी। ओके, किसी को कोई इशू तो नहीं यहाँ पे अभी तक? चलिए दोबारा बता दें। ओके मैडम, ये जो आपके पास स्लाइड खुली है ना अभी इस वक्त, ठीक है, इसके सबसे ऊपर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है z इज इक्वल टू 1 प्लस s ओवर 1 माइनस s, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली z की वैल्यू है इन फॉर्म ऑफ s, ठीक है। व्हाट इफ के हमें s की वैल्यू चाहिए हो इन फॉर्म ऑफ z, ठीक है। उस केस में हमने इसी में से ना s को मतलब लेफ्ट राइट मूव करके थोड़ा सा आइसोलेट किया है, तो हमारे पास जो s की एक्सप्रेशन बनी है वो बनी है z-1 ओवर z+1, ठीक है। s इज इक्वल टू z-1 डिवाइडेड बाय z+1, ठीक है। अब ये जो s की एक्सप्रेशन है इसको मैंने पुट कर दिया, ये जो स्लाइड अभी मैंने शो की हुई आपके सामने, फोर्थ स्लाइड, इसमें जो सबसे नीचे वाला मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जहां जहां s है वहां आप z-1 ओवर z+1 पुट करें, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में एलसीएम वगैरह लें, जो एलसीएम वाली टर्म है उसको ऊपर ले जाएं, तो आपके पास फाइनली h ऑफ z की एक्सप्रेशन बन जाएगी, जो आपके सामने यहाँ शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास एक h ऑफ z की एक्सप्रेशन बन गई है, इसको चूंकि हमने z की पावर नेगेटिव होनी चाहिए डिले एलिमेंट्स के लिए, तो जो z की सबसे हाईएस्ट पावर है जो कि z क्यूब है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी मैंने दोनों जगह पर इसको z क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास h ऑफ z की एक्सप्रेशन बन गई z की रेज़ टू फॉर्म माइनस पावर के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ ये डिविजन्स की, वो जो लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन है उन्हें जरा मैं छोटा कर लूं, ठीक है। तो मेरे पास h ऑफ z की फाइनल एक्सप्रेशन जो बनी है वो ये बनी है, h ऑफ z इज इक्वल टू 0.0181 into 1 plus z इनवर्स into 1 plus 2 z इनवर्स plus z रेज़ टू पावर -2, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में 1 minus 0.50 z इनवर्स into 1 minus 125 z इनवर्स plus 0.39 z रेज़ टू पावर -2। ओके, अच्छा, अब ये बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है IAR फिल्टर का z डोमेन में, ठीक है। हम इस ट्रांसफर फंक्शन का अगर इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास इसका इंपल्स रिस्पांस आ जाएगा डिस्क्रीट डोमेन में स्मॉल h ऑफ n, ओके, ठीक है। दूसरा, हमें ये पता था कि जब हम h ऑफ z की फॉर्म में अपने फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन को लिख लेते हैं तो उसके बाद हम उसे इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये बात याद है आप सबको? हेलो इंटेलिजेंट बच्चों, सर मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ये समझ नहीं आई, आपने c माइनस क्यूब से क्यों किया है? z माइनस क्यूब से नहीं किया, z प्लस क्यूब से किया। सर वहां पे आपने लिखा हुआ है जी, मैं माजरत खाऊं उसके लिए, माइनस क्यूब के बजाय प्लस क्यूब कर लें यहाँ पे आप। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन है वो हमेशा हाईएस्ट पावर से होती है, हाईएस्ट पावर z क्यूब है, आपने ऊपर और नीचे z क्यूब से डिवाइड करना है, ठीक है। ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब h ऑफ z की जो एक्सप्रेशन बनी है मैं उसे एक अपने पास लिख लूं, ठीक है, और फिर हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, into 1 plus z inverse into 1 plus 2, मतलब मैं आप सबसे चाहता हूँ आप प्लीज अपने पास पीस ऑफ पेपर पे लिख लें ये जो h ऑफ z की फाइनल एक्सप्रेशन बनी है, फिर हम इसे वो जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो करते हैं। ओके, तो उसके बाद जब हमने अपनी एक्सप्रेशन को इस तरह ब्रेक कर लिया है तो हमें पता है कि हम इसकी कैस्केड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। जो एक बीच में स्केलर वैल्यू जिसके साथ कोई डिले एलिमेंट नहीं आ रहा लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रही है, वो है 0.0181, उसको मैंने सबसे पहले लिख दिया है। बेसिकली एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो आपके पास टॉप प्लॉट है वहाँ पे इनपुट है, इनपुट सिग्नल स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0181 के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने जो ये पहले वाली टर्म है 1 प्लस z इनवर्स ओवर 1 माइनस 0.5 इंटू z इनवर्स, उसको पहले शो कर दिया, ठीक है, जिसमें एक ही फीडबैक है 0.50 और वो चूंकि नेगेटिव के साइन के साथ इसलिए यहाँ पे ये प्लस हो गया, ठीक है। जो पहले वाला ब्लॉक है वो उसको शो करा, और जो आगे वाला ब्लॉक है वो सेकंड ऑर्डर वाले शो करा, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास 2 डिले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और आपके पास 2 फीडबैक्स हैं। आपके पास एक फीडबैक का साइन नेगेटिव है -1.25 का, उसको मैंने प्लस कर दिया,
जो दूसरा फीडबैक है वो पॉजिटिव है, उसको मैंने नेगेटिव कर दिया -0.398 के साथ। आपके पास जो फीड फॉरवर्ड है वो पहले वाला 1 है, इसलिए वहाँ पे मैं कुछ शो नहीं कर रहा। आपके पास दूसरा +2 है, वहाँ पे मैंने +2 के साथ शो कर दिया, और आपके पास लास्ट वाला जो है वो येट अगेन +1 है, वहाँ पे मैं कुछ शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने बेसिकली जो आपका h ऑफ z था उसको इंप्लीमेंट किस तरह किया है यूजिंग डिले एलिमेंट्स, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने शो किया है। ये कैस्केड रिप्रेजेंटेशन है IAR फिल्टर की, मेड अप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन फॉलोड बाय सेकंड ऑर्डर सेक्शन, ठीक है। आपको पता है आपके फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो थर्ड ऑर्डर बन जाएगा, और ये बेसिकली वही आपके IAR फिल्टर की जो डिग्री है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में डिवाइड करने का फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही डिले है और आपके पास राइट साइड पर 2 डिलेज हैं, ठीक है। हमारा जो h ऑफ z है उसे हमने किस तरह इंप्लीमेंट किया है, ये जो सामने फिगर बनी है, अगर इसको लेके किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। सर एक मिनट पीछे वाला करना है तो मैं आपको वही कह रहा था कि पिछले एंड पे जो एक्सप्रेशन है उसको अपने पेपर पे लिख लें, आपने नहीं लिखी, अब लिख लें ताकि सर आप लिख रहा था चलें लिख लें जी जल्दी से आप। जब आप लिख लें तो हमें बता दीजिएगा, ओके। लिख लिया सर। लिख लिया, ओके, सबने लिख लिया, आगे चलूं अब। जी सर। जी सर, ओके यस चलें। सर। ये h ऑफ z है, उसकी मैंने कैस्केड रिप्रेजेंटेशन की है। आप एक बार कंपेयर कर लें अपनी एक्सप्रेशन के साथ, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, कोई अगर इशू है तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। सर ये जो लेफ्ट साइड है ये इनपुट है और राइट साइड जो है मैं आपको बताता हूँ मैडम, लेफ्ट साइड पे ये जो 0.0181 लिखा हुआ है ना मैंने, जी सर। इसके बिल्कुल पीछे लिख लें इनपुट सिग्नल, ओके ठीक है। आपका इनपुट सिग्नल स्ट्रेट अवे से मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0181 से। अपने ट्रांसफर फंक्शन में देखें यही काम नहीं हो रहा, ठीक है। आपका जो भी इनपुट सिग्नल है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो पहले 0.0181 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद वो ये फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन में से गुजरा है मल्टीप्लाई होके, और फिर सेकंड ऑर्डर सेक्शन में से गुजरा है। जब उसके ऊपर ये सारे काम हो जाएंगे तो उसकी वो डिजिटल फिल्टर में से गुजर जाएगा, उसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी, वो आपका फाइनली आउटपुट सिग्नल बन जाएगा, ओके। जी सर। किसी और बच्चे को इस फिगर को लेके क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है अभी, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। कोई इशू नहीं? सर इसमें -2 और -3 था, उसको हमने खुद ही -1 में कन्वर्ट कर दिया है। मैडम कौन सा -2 -3 था? सर इक्वेशन में 1 + 2 z⁻⁻1 1 + 2 z⁻⁻1, और क्या था इसके साथ? प्लस z-2 स्क्वायर प्लस z-2, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास फीड फॉरवर्ड के जो वेट्स हैं वो बता रहा है, ओके। इसको हमने यहाँ शो किया हुआ है क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर सेक्शन में है, तो आपके पास जो ये अभी स्लाइड में जो एक सामने ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है, इसके राइट साइड पे जो ब्लॉक है ना, इसके भी एक्सट्रीम राइट साइड पे सेंटर में मैंने 2 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है ये? जी सर। ठीक है। दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये जिस लाइन पे 2 है ना, इसके ऊपर वाली लाइन पे एक 1 भी है जो शो नहीं होता, और इसके नीचे वाली लाइन पे एक और 1 भी है, ठीक है। ये बेसिकली वही वाले 2 1 है जो अभी आपने एक्सप्रेशन पढ़ी है, इसमें एक पहले 1 है और एक आखिरी z⁻2 के साथ भी एक 1 है। वो वाले जो 2 1 है वो यहाँ पे लिखे हुए मैंने शो नहीं किए, लेकिन अगर कुछ भी ना हो तो वो चीज 1 से मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी अगर आपका दिल करे तो लाइन के ऊपर 1 लिख लें, और इससे नीचे वाली लाइन पे भी आपका दिल करे तो एक 1 लिख लें, ठीक है। यस सर। ओके, मुझे लगता है किसी के पास क्वेश्चन नहीं है अभी तक, तो फिर हम आगे चलते हैं। सर जी सर जो आपने आउटपुट में साइन चेंज किया, ये क्यों चेंज किया है? जैसे कि 1.25 के साथ माइनस का साइन था और नीचे 0.398 के साथ प्लस का साइन था। ओके, मेरा ख्याल है शायद आप उस लेक्चर में थी नहीं। आपके पास डिनोमिनेटर में जो चीज होती है ना वो फीडबैक को शो कर रही होती है, ओके ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो जो भी साइन होंगे ना डिले एलिमेंट्स के, उनके आपने साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। जैसे z⁻1 के साथ जो साइन है वो -1.25 है, तो मैं उसे अपनी ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन में +1.25 के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। येट अगेन आपके पास z⁻2 के साथ जो है वो 0.39 का वेट है पॉजिटिव, इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव के साथ लिख रहा हूँ। ये सिर्फ मैं राइट साइड वाले सेक्शन के साथ ही नहीं कर रहा, ये काम मैं लेफ्ट साइड के सेक्शन के साथ भी कर रहा हूँ। अगर आप लेफ्ट साइड सेक्शन में आए तो मेरे पास 1 -0.5 जी इनवर्स -0.5 जो है इसका साइन माइनस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको प्लस के साथ लिख रहा हूँ। तो अपने पास ध्यान में रखिएगा कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो चीज होती है वो आपको फीडबैक शो कर रही होती है, और फीडबैक हमेशा आप साइन चेंज करके लिखते हैं, ओके।
ओके सर। चल, और कोई क्वेश्चन है? तुम आगे आऊं फिर इसके आगे चलूं मैं? सर चलिए। चलें, इसका मतलब है कि अब किसी भी एनालॉग फिल्टर को HFS से आप बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए उसको IR फिल्टर बना लेंगे। जी सर। Yes, ठीक है, sir. और जब आप IIR फिल्टर बना लेंगे, जब आपको HFZ मिल जाएगा तो आप उसको रिप्रेजेंट भी कर देंगे, आप उसको इंप्लीमेंट भी कर देंगे अपने सर्किट की फॉर्म में या डिले एलिमेंट्स की फॉर्म में, क्योंकि जब आप डिले एलिमेंट्स की फॉर्म में उसे इंप्लीमेंट कर देंगे तो फिर उसकी फिजिकल रियलाइजेशन मुश्किल नहीं रहती उसके बाद। ओके, ठीक है। तो जो आखिरी हमारे पास बीइंग एन इंजीनियर जो चीज आपने आगे अपने टेक्नीशियन को देनी होती है वो फिल्टर इंप्लीमेंट करने के लिए फिजिकली, वो बेसिकली यही ब्लॉक डायग्राम होती है जो यहाँ पे शो हो रही है आपके सामने। ओके, तो ये ब्लॉक डायग्राम जब आप उसे देंगे तो ये आपने एक पर्टिकुलर फिल्टर डिजाइन कर लिया है एक पर्टिकुलर ओमेगा सी के साथ, बटरवर्थ लो पास फिल्टर फॉर ऑर्डर 3। ओके, अच्छा, अब चूंकि IIR फिल्टर यहाँ पे पूरा हो गया है तो हम आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज जो रह गई थी अभी तक, ठीक है, आपके पास स्मॉल कैपिटल HFZ है जो कि आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है आपके फिल्टर का। ठीक है, अच्छा, अगर हम अपने कैपिटल HFZ का इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म लें तो हमें स्मॉल HFN मिलेगा जो कि हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स होता है। ओके, बेसिकली मैंने यही जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखी हुई है इसी का इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म लिया है और फिर मैंने उस इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म लेके जो HFN आया है उसमें n की वैल्यूज पुट करके मैंने कुछ जगह तक उसे प्लॉट किया। ठीक है, और बेसिकली वो जो प्लॉट है वो यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में शो हो रहा है, बेसिकली HFN का प्लॉट है, n 0 से शो हो रहा है और n तक चलता जा रहा है। ये जो प्लॉट है मैंने इसलिए शो किया आपको बताने के लिए कि चूंकि ये एक IIR फिल्टर था इसलिए आपके पास जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो किसी पर्टिकुलर रेंज में नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो आप देख भी सकते हैं कि वो 0 n से शुरू हुआ है और n टिल पॉजिटिव वो आगे चलता जा रहा है। बेशक उसकी वैल्यूज विद द पैसेज ऑफ टाइम कम जरूर होती जाएंगी लेकिन वो कभी भी पूरी तरह 0 नहीं होगा। ठीक है, इस फिगर को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये एक सिंक फंक्शन है। ठीक है, और सिंक फंक्शन की आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि सिंक फंक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम 0 के पास पहुंचता तो जाता है, वो कभी भी इंटायरली 0 नहीं होता। ओके, Yes, sir. ठीक है, इसको लेके किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बेसिकली HFN जो यहाँ पे शो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म है आपके ऊपर वाले HFZ का, और इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म आई होप कि आप लोगों को लेना आता है, राइट? हेलो बच्चों, आप सब लोग जाग रहे हैं कि सो गए हैं? सर जाग रहे हैं। हाँ, मुझे कोई बोलता ही नहीं आगे सर से, जाग रहे हैं। मुझे लगता है मुझे म्यूट कर दिया किसी ने, मुझे हर 2 मिनट बाद ये चेक करना पड़ता है। अब कोई सोया होता है, मुझे लगता है जगाना पड़ता है मुझे जाके। ओके, अच्छा, अगर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे 5 मिनट के ब्रेक करते हैं और फिर हम 5 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं FIR फिल्टर्स के साथ। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके। सर एक मैपिंग वाले में क्वेश्चन है। पूछे मैडम, मैं मैपिंग वाली स्लाइड खोल लूं जरा। जी मैडम पूछें। सर यहाँ पे जो यूनिट सर्कल में आपने जो बनाया है या सर पोल बनाया है नीचे, यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे बनाया है, और सर जो एस प्लेन में है ना ये सर लेफ्ट साइड पे आपने बनाया है, तो सर इस वाले की समझ नहीं आई पोल वाले की। देखें, सबसे पहले ये क्लियर है कि जो एस प्लेन में जे ओमेगा वाली लाइन है मैंने उस पूरी स्ट्रेट लाइन को एक सर्कल बना दिया है तो मेरे जी प्लेन में मैपिंग हुई है उसकी, ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा, एस प्लेन में जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया वो ये है कि आपके जो पोल्स है ना वो आपके जे ओमेगा से लेफ्ट साइड पे होने चाहिए सारे के सारे। ओके, यस। ठीक है, अच्छा, अगर वो जे ओमेगा से लेफ्ट साइड पे हैं एस डोमेन में तो जी डोमेन में कहाँ होने चाहिए सारे के सारे? सर नहीं पता। Inside the circle. इनसाइड द सर्कल, क्योंकि आपने एस प्लेन में इनसाइड द सर्कल जो कुछ है उसे इस सर्कल के अंदर बंद कर दिया जी डोमेन में। ठीक है, तो एस प्लेन में जो कुछ आपका लेफ्ट हाफ प्लेन है जे ओमेगा नेगेटिव मतलब नेगेटिव सिग्मा के साथ, नेगेटिव सिग्मा में जो कुछ है वो सारे का सारा यूनिट सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो अगर आपके पास एस प्लेन में जो पोल्स हैं वो जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड पे हैं तो जी प्लेन में वो सारे के सारे यूनिट सर्कल के अंदर होंगे। बस यही है, और तो उसमें कोई मसला नहीं है खास। अब भी नहीं क्लियर? सर क्लियर हो गया। बस आपने सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो जियो मेगा वाला एक्सिस है ना, जो आपके पास वाई एक्सिस होता है यूजुअली, ये पूरे का पूरा एक्सिस अब यूनिट सर्कल की ये बाउंड्री बन गया, बस दैट्स ऑल।
ओके चलें गाइस, हम 5 मिनट मिलते हैं दोबारा। ओके Okay, sir. हेलो यस सर जी, सब आ गए वापस? Yes, sir. ओके, फिर हम शुरू करते हैं आगे से। ओके, और जो अगला टॉपिक है हमारा वो है FIR filters. Okay, the FIR filters, just a second, let me ensure that everyone is attending. Yeah, everyone is attending. Okay, everyone can see the slides, right? Yes, sir. Okay, अच्छा,
First of all, in case of FIR filters, your transfer function is a polynomial in Z inverse. Okay, in the case of IIR filter, it was a rational function. Okay, by rational function I meant that there was something in numerator and there was something in denominator. Okay, in the case of FIR filter, you only have something in numerator. Okay, you will not have a denominator part. Okay, furthermore, it will be a all zero filter, that is zeros in Z domain represent frequency response. Okay, we know that from our rational function, whatever we get from the numerator represent my zeros, and whatever I get from my denominator represent my poles. Okay, so in this case I only have a polynomial Z in Z inverse, so it means that I will only have zeros, I will not have any poles. Okay, furthermore, since I will only have zeros and also the range will be given, so the FIR filter will be inherently stable because the impulse response is finite and hence integrable as well. Okay, and how do we do it is that assume that we have a transfer function in frequency domain h of e j omega discrete frequency. We take its inverse discrete Fourier transform and we get its h of n. Okay, just like before. Okay, so now our h of n is actually IIR, it is infinite impulse response. What we do is we multiply our h of n with a certain window. Okay, by window means that there is only a set of values that I will take now and all the s rest will be discarded. Okay, and when I multiply my h of n with certain window, I come up with h dash of n. Okay, and it will now have a finite impulse response. Okay, and I'm also showing what I'm doing over here as in a pictorial form in the bottom. Okay, so you have your h of n which does not have any range, it is infinite, it has also values in negative n and also values in positive n. Okay, then I choose a certain window of certain length. In this case I choose a window of 1 2 3 4 length. I apply that window on this h of n, and afterwards I will only have those values of h of n which lie inside this window. Okay, which is h of 0, h1, h2, h3, h4. That's all the other values of h of n and all the other values of h of n lying at other values of n will be discarded. So now my h dash of n will be FIR, it will have a finite impulse response. Okay, and this is effectively what we do in our FIR filter design. Okay, anyone has a question with this particular slide, let me know. If not, then I will move forward. किसी के पास कोई क्वेश्चन है? No sir. Okay, आगे चलते हैं हम. Okay, so since we saw that one integral part of FIR filter design is a window. Okay, and window can be of different types. So there are 3 different types of windows that we typically use. Okay, the first one is rectangular window. The rectangular window has a magnitude of 1 in the range of 0, small and till m minus 1, where m is your filter order. Okay, it is going till m minus 1 because it started from 0. Okay, so that's why we take it to m minus 1. Okay, it has 1 magnitude in this range and it will have a 0 magnitude everywhere else. Okay, so if you multiply your this particular rectangle window with any function, it will turn all the other values to 0 because its amplitude is 0, and only those values will be retained which lie within this range of 0 till m minus 1. Okay, this is a simple rectangle window. We also have 2 more windows. We call them Hamming window and Hanning window. Okay, Hamming with capital M, double M in the middle, and Hanning with double N in the middle. Okay, and they have a slightly different profile as compared to rectangle window. Their formula is 0.454 plus 0.46 cos 2 pi n over m minus 1, yet in the range of 0 to m minus 1. In the case of Hanning window, the formula is 0.5 minus 0.5 cos 2 pi n over m minus 1. Okay, so what you do is whenever you want to apply this window, you choose particular values of n, you put those values of n inside this formula, and whatever you get as amplitude, you multiply that amplitude with your signal value. Okay, above given windows are used to convert our IIR h of n to FIR h bar of n. Okay, अभी तक किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर हम इस एग्जांपल पे चलते हैं जो कि इसकी इंप्लीमेंटेशन है, और जब हम इस एग्जांपल को करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हम FIR फिल्टरिंग में क्या करते हैं. किसी के पास क्वेश्चन है अभी तक कोई? सर m-1 की क्या रीजन बताई थी आपने भी? हाँ, क्योंकि हमारा जो शुरू हो रहा है रेक्टेंगल विंडो वो 0 से शुरू हो रही है. अगर आप एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो 0 इंक्लूसिव है, राइट? मैंने जो रेंज है आपके फिल्टर
ठीक है, जो स्मॉल n की रेंज है वो 0 से शुरू होकर m-1 तक आ रही है, ठीक है। क्योंकि वो 0 से शुरू हो रहा है इसलिए हम उसे फिल्टर ऑर्डर ले जाने के बजाय एक कम फिल्टर ऑर्डर तक लेके जाते हैं। अगर आपने उसे m तक लेके जाना होता तो आप उसे 0 से शुरू करने के बजाय 1 से शुरू करते हैं। ओके ओके सर। ओके, आगे चलूं फिर मैं? श्योर सर। ओके, सो नाउ वी हैव एग्जांपल, और जब हम एग्जांपल कर लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सारा प्रोसीजर हम क्या करते हैं एफआईआर फिल्टर के केस में, ठीक है। We are given with ट्रांसफर फंक्शन h of e j omega e raised to power minus j 2 omega, ठीक है। अब जो ओमेगा आपका डिस्क्रीट बन चुका है, अगर आप किसी ने अगर ये बात नोट अभी तक नहीं की, ओके। नाउ यू डोंट हैव ओमेगा एज w एनीमोर, यू हैव ओमेगा एज ओहम फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, ओके। दिस मींस कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो डिस्क्रीट है, ओके। फर्दरमोर आपको h of e j omega दिया हुआ है और हमें कहा गया है फाइंड FIR h bar of n h dash of n using window rectangular window with a length of 0 to 4, ओके। और हमें जो ओमेगा सी है वो दिया हुआ है कि वो -π/4 से +π/4 के बीच में, ठीक है। यूजुअली जब भी आपको FIR फिल्टर डिजाइन करना होगा आपको ये सारे पैरामीटर्स दिए होंगे, ठीक है। आगे विंडो लेंथ कितनी है 5, क्योंकि वो 0 से लेके 4 तक आ रही है, ओके। ये सारी इनपुट चीजें दी हुई हैं। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना होता है कि हमारे पास जो h of e j omega है जिसकी टर्म हमें दी हुई है h of -j2 omega, ठीक है। हमें इसका इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा ताकि हमारे पास स्मॉल h of n आए, ठीक है। और स्मॉल h of n लेने के लिए हमें फार्मूला पता है, उसका फार्मूला है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई h of e j omega into e raised to power j omega n d omega, ठीक है। मैं h of e j omega की जगह जो ऊपर वाली मुझे एक्सप्रेशन दी है मैं उसको यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम -π/4 टू +π/4 e raised to power j omega into n-2 d omega, ठीक है। मुझे पता है इंटीग्रेशन करने के लिए यही जो e raised to power j omega n-2 है ये न्यूमरेटर में तो एज इट इज रहेगा और ओमेगा के अलावा जो कुछ है वो नीचे आ जाएगा, तो j into n-2 नीचे आ गया और π/4 -π/4 आपने वैल्यूज पुट करनी है। मैंने उन वैल्यूज को पुट किया। अच्छा, उन वैल्यूज को पुट करने के बाद जो मेरे पास टर्म बनी है वो बनी है 1/π into n-2 e raised to power j π/4 n-2 minus e raised to power minus j π/4 n-2 over 2j। अच्छा, अब ये जो 2j है ये बेसिकली लेफ्ट साइड पे मौजूद था, जो 2π into j n-2 है, यहाँ से 2j उठा के मैं उस तरफ ले गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यूलर आइडेंटिटी से एक फार्मूला पता है कि e raised to power j थीटा माइनस e raised to power माइनस j थीटा over 2j साइन थीटा के बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ से मेरे पास कुछ साइन को साइन बन जाए, तो ये साइन बन रहा था तो मैंने साइन बना लिया है। और फाइनली मेरे पास जो h of n बना है जो कि मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है IIR, ठीक है। ये बना है 1/π into n-2 sin π/4 into n-2, ठीक है। अभी तक किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरे पास h of e j omega की टर्म थी e raised to power minus j2 omega, इसका इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया। कोई क्वेश्चन अभी तक? नो सर। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हमने h of n को प्लॉट करना हो तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे? दोबारा रिपीट करिए। मेरे पास h of n की एक्सप्रेशन आ गई है, स्मॉल h of n की, राइट? जी सर। अगर मैंने इसका प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगा? सर ये सर विंडो के साथ उसको वो ले लेंगे अभी कॉन्वर्सेशन। अभी विंडो की बात ही नहीं आई, अभी एक IIR रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो कि n की रेंज यहाँ पे नहीं दी हुई, तो आपके पास n 0 से लेके -∞ से +∞ तक हर चीज मौजूद है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है इस h of n को प्लॉट कैसे करूंगा? मैं पहला काम क्या करूंगा प्लॉट करने के लिए? सर n की वैल्यूज निकालेंगे। 2 से स्टार्ट हो। कहीं से भी आपके पास रेंज नहीं दी हुई, ठीक है। हाँ, आप n 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली n -∞ से स्टार्ट होना चाहिए, +∞ तक जाना चाहिए। n की सारी वैल्यूज जितने भी पॉसिबल एग्जिस्ट करती हैं इस रेंज में वो आप बारी बारी अपने इस क्वेश्चन में पुट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको प्लॉट करते जाएंगे, ओके। यस सर। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये h of n जो है ये IIR है, इसका इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पांस है, फाइनाइट नहीं है, कोई रेंज नहीं है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो हम अगला काम क्या करते हैं, इसको फाइनाइट बनाने के लिए इसको विंडो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। विंडो को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ W of n के साथ, ओके। सबको शो हो रहा है ये? यस सर। हाँ जी।
अच्छा, अब ये डब्ल्यू ऑफ एन क्या था? ये डब्ल्यू ऑफ एन हमने एक रेक्टेंगल विंडो ली थी, ठीक है, और जिसकी जो रेंज थी वो 0 से 4 तक थी, ठीक है। अच्छा, तो इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि मेरे पास एच ऑफ एन की वो सारी वैल्यूज जो कि इस रेंज में आ रही हैं, एन इज इक्वल टू 0 से 4 तक, क्योंकि इस रेंज में इस रेक्टेंगल विंडो का एम्पलीट्यूड 1 है। जब एच ऑफ एन इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एच ऑफ एन बजाते खुद मौजूद रहेगा, लेकिन इसके अलावा बाकी हर जगह पे डब्ल्यू ऑफ एन का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है, तो बाकी हर जगह पे एच ऑफ एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आई आई आर जो अब 5 वैल्यू है। 5 वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल आप सही सही कह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस था एच ऑफ एन का, वो फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस बन जाएगा एच डैश ऑफ एन की फॉर्म में, ओके। और ये काम होता कैसे है? ये काम होता ऐसे है कि आप इस तरह का एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। उस टेबल में आप n की वैल्यूज लिख देते हैं जो आपने कैलकुलेट करनी है, जो कि इस केस में 0 1 2 3 4 तक है, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। इस केस में आपके विंडो की जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, ठीक है, जो कि विंडो का एम्पलीट्यूड 1 नहीं है हर जगह पे, तो मैंने वहां हर जगह 1 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एच ऑफ एन को कैलकुलेट कर लिया है। बेसिकली मैंने n की वैल्यूज पुट की हैं अपनी इसी एच ऑफ एन की एक्सप्रेशन में, ठीक है। और वो पुट करने के बाद मैंने वैल्यूएट किया है, तो मेरे पास 0 पे वैल्यू आई है 0.16, 1 पे वैल्यू आई है 0.225, 2 पे वैल्यू आई है 0.25, 3 पे आई है 0.225 येट अगेन, और 4 पे वैल्यू आई है 0.16, ठीक है। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। ये मेरे पास एक फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस है जो कि मैंने इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस से बनाया था, ठीक है। और अब ये एफआईआर फिल्टर का मेरे पास इंपल्स रिस्पांस आ गया, ठीक है। अगर आप इस इंपल्स रिस्पांस को थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको इसमें थोड़ी सी सिमेट्री दिखेगी। आपको सिमेट्री शो हो रही है थोड़ी सी? ये सर जी स्क्वायर्स सर। हैं। ठीक है, तो जो पहली वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू के बराबर है, जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड लास्ट वैल्यू के बराबर है, और जो मिडिल वैल्यू है वो यूनिक वैल्यू, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है, एफआईआर फिल्टर का, ठीक है। और सर ये जी जी, सर ये एम्पलीट्यूड हमेशा 1 ही लेना है, ओमेगा एन का जो विंडो का। ये ओमेगा एन तो नहीं है, वो सर डब्ल्यू एन मतलब विंडो डब्ल्यू जो एन है। विंडोज तो उसका विंडोज वन। सर वन विंडोज। क्यों लिया हमने इस एग्जांपल में? एग्जांपल वो कहाँ है, इसकी एक्सप्रेशन कहाँ है, क्यों मैंने वन लिया? आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है? वो जो आपने सर वो जो आपने 0 से शुरू कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो जो आप रेक्टेंगुलर विंडोज की जो दी हुई है 1 और 0 है ना लिमिट्स। रेक्टेंगल विंडो अच्छा का अच्छा 1। वन होता है, ओके ओके यस समझ अगर आ मैं यहाँ रहा पे हैमिंग या हैनिंग लिखता तो फिर आपको इस विंडो की जगह इस विंडो की जगह इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ता हर एक वैल्यू को पुट करके, ओके, है। Yes. ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि प्लीज इसी एग्जांपल को रिपीट करें, लेकिन इस केस में आपने हैमिंग विंडो करनी है यूज, ठीक है। तो अब ये जो टेबल बना हुआ है जिसमें डब्ल्यू एन के नीचे मैंने हर जगह 1 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ 1 1 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ 1 की वैल्यू पुट करेंगे इस हैमिंग विंडो वाली एक्सप्रेशन में, मतलब ये 0.54 प्लस 0.46 cos 2 pi n ओवर कैपिटल M - 1, यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यूज पुट करते रहेंगे, जो रिजल्ट आता जाएगा उसको टेबल में लिखते रहेंगे, और फाइनली उस डब्ल्यू एन को इस एच ऑफ एन से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब उस डब्ल्यू एन को इस एच ऑफ एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एच डैश ऑफ एन आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, ओके। सर यहाँ पे फिर m क्या होगा, मतलब m जो पड़ा है वो क्या होगा यहाँ पे ऑर्डर तो हमें नहीं पता। यहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं पता, बिल्कुल आपकी सही बात है, जस्ट अ सेकंड मुझे देख लेने दें। हाँ, बेसिकली इस केस में आपका फिल्टर ऑर्डर जो है वो सुपरसीड हो जाएगा आपकी विंडो लेंथ के साथ, ठीक है। आपका फिल्टर ऑर्डर जो कुछ मर्जी हो, क्योंकि हम इस फिल्टर को 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, हमें फिल्टर ऑर्डर की एक्सप्रेशन दी हुई है, ओके। सो वी आर नॉट कंसर्न कि इसका ऑर्डर क्या था क्या नहीं है, ठीक है। आपके पास एच ओ वी जे ओमेगा दिया हुआ है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आप जिस चीज में इंटरेस्टेड है वो विंडो लेंथ में है, ठीक है, क्योंकि आपका फिल्टर उसी ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करेगा, उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं जिस ड्यूरेशन में विंडो लेंथ जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो विंडो लेंथ जो है वो नॉन जीरो है 0 से 4 तक, ओके। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे फिल्टर ऑर्डर जो है वो 5 शो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो फिल्टर ऑर्डर होगा उतने ही आपके पास कोएफिशिएंट्स मौजूद होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस एफआईआर के केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के केस में आपका जो फिल्टर ऑर्डर था वो 5 है, ठीक है। वैसे अगर हम हैमिंग विंडो यूज करें उस पे m की वैल्यू फिर हम 4 ही लिखेंगे, ओ m फिर 4 होगा या 5 ही होगा? m 5 होगा, बिल्कुल उसमें m आप 5 लेके तो ही कैलकुलेट कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब जितनी वैल्यूज होंगी उसकी n की उतनी ही होगा, m भी उतना ही होगा। बिल्कुल m उतना ही होगा, ठीक है, जितनी वैल्यूज आपके पास एग्जिस्ट करती है विंडो लेंथ की। अच्छा, अभी आपके लिए एक होमवर्क है थोड़ा सा, कि ये जो एग्जांपल है कि आप इसको हैमिंग विंडो से लेके इसको रिपीट कर सकते हैं। यस सारे कर सकते हैं सब लोग?
यस सर। ओके चलें फिर ये होमवर्क अपने पास रखें आप, और इस होमवर्क को हम फिर वेडनेसडे को मैं आपसे लूंगा वापस, ठीक है? किसी के पास ये आज के लेक्चर को लेकर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे रोक सकता है, पूछ सकता है, मैं बताऊंगा। मतलब सर ये इसी क्वेश्चन को हैमिंग और हैनिंग दोनों में करना है? हैमिंग और हैनिंग दोनों के साथ कर दें, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा मैं ये अगेन आपको बता दूं। ये जो टेबल आपके सामने शो हो रहा है यहाँ पे, डब्ल्यू ऑफ एन के नीचे 1 1 Yes, नहीं sir. आएगा, डब्ल्यू ऑफ एन के नीचे जो वैल्यूज आएंगी वो आप कैलकुलेट करेंगे, और जो लास्ट कॉलम है एच डैश ऑफ एन वाला वो भी ये नहीं रहेगा जो एच ऑफ एन है, क्योंकि आप इसे किसी डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका एच ऑफ एन और एच डैश ऑफ एन दोनों चेंज होंगे, और फिर आप उसे इसी ब्रैकेट की फॉर्म में लिख के मुझे बता देंगे कि ये आपके FIR फिल्टर के कोएफिशिएंट्स आए हैं 4 या 5 जितने भी हैं, ठीक है? सर उसमें m की जगह हम ऑर्डर लिखेंगे ना? हाँ एम की जगह ऑर्डर जो कि 5 है, बिल्कुल कैपिटल एम की जगह। यस सर। ठीक है गाइस, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो? सर जी सर एच ऑफ एन आप कह रहे हैं चेंज नहीं होगा? एच ऑफ एन चेंज नहीं होगा, आपके पास एच डैश ऑफ एन चेंज होगा, ठीक है और डब्ल्यू सही है। जी अभी मेरे पास एच डैश ऑफ एन और एच ऑफ एन सेम है, क्योंकि डब्ल्यू एन 1 है, तो एच ऑफ एन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम रहेगा, लेकिन आप जो भी एग्जांपल करने जा रहे हैं इसमें एच डैश ऑफ एन और डब्ल्यू एन जो दोनों चेंज होंगे, ठीक है? ऐसा ही है। जी सर। ओके चलें फिर आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे दोबारा वेडनेसडे को। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर यस सर। खातून मुझसे कुछ पूछना चाहती थी, मैडम पूछें। आप नहीं पूछ रही। हेलो सर एच ऑफ एन भी चेंज नहीं होगा, वो भी यही रहेगा? एच ऑफ एन चेंज नहीं, एच ऑफ एन यही रहेगा। देखें आप जो चीज चेंज कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी विंडो चेंज कर रही हैं। ओके आपकी विंडो ने इफेक्टिवली मल्टीप्लाई होना होता है आपके एच ऑफ एन के साथ, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एच डैश ऑफ एन मिलेगा। ओके आपका एच ऑफ एन सेम रहेगा, आपका डब्ल्यू ऑफ एन चेंज हो जाएगा। जब आपका डब्ल्यू ऑफ एन चेंज होगा तो इसका मतलब है कि आपका एच डैश ऑफ एन भी चेंज होगा। तो अगर ये जो आपके सामने प्लॉट शो हो रहा है, सबको टेबल शो हो रहा है? जी सर। जी सर हो रहा है। तो Yes, इसमें sir, हो रहा है। तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम चेंज होगा, पहला और तीसरा कॉलम सेम रहेंगे, यस सर। ठीक है? किसी और के पास कोई क्वेश्चन हो? सर इसका एक दफा क्वेश्चन देखने दे दें, वो स्लाइड खोल दें। मैडम आप 2 दफा देखें, ये लें सबसे नीचे। सर जी सर लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर आपने डिजाइन करवाया था लो पास फिल्टर ऑर्डर 4 के लिए, उसकी आपने कहा था खुद सॉल्व करें और एंड एक्सप्रेशन आपने बता दिया था। सर वो सॉल्व नहीं होता, पता नहीं 3 दफा किया, इतना लंबा है लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा, वो वैल्यूज नहीं आ रही जो आपने करवाई हैं, शायद जे सही सॉल्व नहीं होता। अच्छा किसी और से भी नहीं हुआ? कि और किसी ने किया ही नहीं? सर उसकी वैल्यूज चेंज आती हैं एंड में। जी मैं वही पूछ रहा हूँ, किसी के पास सही सोल्यूशन नहीं आया? सर इसको जब हम कैलकुलेटर में लिखते हैं ना तो मैथ एरर आता है, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ना तो इसका एंड में आंसर थोड़ा सा चेंज होता है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि किसी के पास ठीक आंसर नहीं आया क्लास में? बोलते नहीं आप लोग। सर ऑर्डर 3 करें तो ऑर्डर 3 के अंदर तो जे की वैल्यूज कैंसिल हो जाती है, कैंसिल आउट, तो फिर उसका आंसर ठीक आ जाता है, लेकिन जब हम ऑर्डर 4 पे आते हैं, एक तो वो लंबा इतना है, दूसरा एंड में जे की वैल्यूज किसी की कोई ना कोई रह जाती है और फिर वो सॉल्व नहीं होती है, मतलब मैडम वही एग्री, मैंने आपका मसला सुन लिया। मैं पूछ रहा हूँ कि क्लास में किसी बच्चे से नहीं हुआ सॉल्व, किसी बच्चे का सही सोल्यूशन नहीं आया? इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता मुझे। सर थोड़ा चेंज आता है उसके अंदर।
अच्छा थोड़ा चेंज आता है। ओके चलें एक काम करें, मुझे अपना जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो जरा लिखवा दें और फाइनल सोल्यूशन बता दें जो मैंने बताया था। मैं इसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ नेक्स्ट टाइम कि क्या मसला है। मुझे मैडम जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैडम प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? डिजाइन अ बटरवर्थ हाई पास फिल्टर एक फॉर सेकंड, ऑर्डर हाई पास फिल्टर ठीक है, फॉर ऑर्डर 4 4 एंड ठीक ओमेगा है, सी इज इक्वल टू 1। ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 ठीक है। ओके तो हमने जो लो पास फिल्टर था, पहले उसकी एक्सप्रेशन लिखनी है ऑर्डर 4 की, वो क्या है मुझे बताएं जरा। सर वो 1 ओवर S4 एक सेकंड, एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर S4 S4 plus 2.6 S cube प्लस 2.6 S क्यूब plus 3.4 S square 3.4 S स्क्वायर plus 2.6 S 2.6 S plus 1। प्लस 1। अच्छा अब इसके साथ क्या करना है, हमने S को 1 ओवर S से रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। यस सर। सर यही नहीं आती है तो आगे क्या जाएं? अच्छा यही नहीं आती, ओके यस सर यही नहीं आ रही है, इसी की वैल्यूज नहीं आ रही हैं। ये तो बेसिकली मैंने बुक से ली थी, लेकिन जस्ट अ सेकंड। यस सर बुक में यही है, जो आपने टेबल दिखाया था उसके अंदर यही वैल्यू है जो आपने लिखवाई है, लेकिन आती नहीं है। अब जिस तरह 2.6 S क्यूब है तो मेरा 4 S क्यूब आ रहा है। अच्छा ओके एक सेकंड मुझे देख लेने दें। अच्छा आपके पोल्स कहाँ पे हैं, मुझे ये बता सकती हैं? डिनोमिनेटर में बेसिकली हमने पोल्स को मल्टीप्लाई किया ना 4 को आपस में, तो वो कहाँ थे? सर जी पोल्स की वैल्यूज बताऊं जो हमने √3 जी बाय जी 2 मुझे या जी मुझे पोल्स की वैल्यू बता दें आप। सर फर्स्ट पोल जो था वो √3 बाय 2 प्लस जे बाय 2 √3/2 प्लस j इंटू 1 बाय 2 ये j बाय 2। इन प्लस j/2 राइट। यस सर प्लस ठीक j बाय 2। और ठीक है, और इसके बाद सेकंड पोल √3 बाय 2 प्लस j बाय 2, तो पहले वाला क्या था, -j/2? वो भी प्लस था। 4 पोल्स है ना सर, तो तो नेक्स्ट दोनों 2 जो सेम है है। वो माइनस, हाँ दो माइनस में 2 प्लस तो में चारों है। एग्जैक्टली लेकिन जो 2 प्लस वाले हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या क्या है, क्योंकि आपने मुझे सेम मैग्नीट्यूड लिखवाया है। √3/2 प्लस j/2 राइट। यस cos 30 और प्लस j sin 30। cos 30 प्लस j sin 30 30 नहीं होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए बेटा। बाईस में 45 ऐड करें कितना होता है? 67। जस्ट अ सेकंड बेटा मुझे हाँ आपके पास एक एंगल होना चाहिए 112.5 1 2 3 4 ठीक है, और दूसरा एंगल होना चाहिए आपके पास 157.5 157.5 बिल्कुल 37.5 ठीक है। आपके पास जो पहला पोल आना चाहिए वो आना चाहिए कॉस ऑफ 112.5। कॉस कितना होता है 112.5 का? मैंने बैठे बैठे माइनस 0.38 -0.38 382 ठीक है। इसका साइन कितना होता है?
0.923 नहीं 0.923 J, ठीक है, ओके। तो मेरे पास जो आपके दो पोल्स हैं 4 में से, वो हैं -0.382 प्लस -0.923 J, ऐसा ही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगले पे आए, मुझे बताएं कि 157.5 का कॉस कितना होता है? -0.923 -0.923। और इसका साइन साइन कितना होता है? 0.382 0.382 J, ओके। अच्छा, मैंने पोल्स ही गलत लिए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ फिर। अब ये पोल सबके पास यही है, मैं सही पोल्स बता दूं एक दफा। पोल्स है -0.382 प्लस -0.92 J, और दूसरे वाला है -0.92 प्लस -0.38 J, राइट? यस सर। ठीक है। अब मेरा आपसे सजेशन है कि प्लीज इन चारों पोल्स को लेकर एक साथ सॉल्व करें। अगर नहीं सही आता तो मुझे बताएं, बाय नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे 2 दिन बाद, तो इन पोल्स को लेके मैं भी HFS बना लूंगा, और मुझे उम्मीद है कि HFS वही होगा जो बुक वाले ने दिया है, ठीक है? सर 4 पोल्स बनने चाहिए ना? अच्छा 4 ही 1 बता 2 रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक सही है, हो जो गया। J वाली टर्म है उसके साथ मैंने प्लस माइनस लगाया है, ठीक है? यस तो एक सर का प्लस ठीक हो गया। माइनस, ठीक है यस सर जी। ठीक है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर। वेलकम। और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो? हेलो, सोए हुए बच्चों। सर कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन? ओके, चलें बेटा, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं वेडनेसडे को 2 बजे, ओके? अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके सर। सर जी जी, पूछें पूछें। सर अटेंडेंस तो डाउनलोड कर लें। जी जी, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूंगा, परेशान ना हो आप। ये डाउनलोड होगी अटेंडेंस। और अब आपकी रिकॉर्डिंग you. स्टॉप की। वेलकम, अल्लाह हाफिज।